All right, everybody. So I hope all of you can hear me loud and clear. I'm solving the question very slowly. Asfahan, I hope you can hear me. They say that beta in the diagram A is the midpoint of OC. तो असफहान वो कह रहा है कि A is the midpoint of OC. तो जब OA स्मॉल a के बराबर है असफहान, तो ये बेटा ये भी स्मॉल a के बराबर होगा. This is we got from the first line. और फिर कहता है कि B is the point on OD where O to B is 1/3 of OD. So I can say one thing, that in this question it is written that OB is 1/3 of OD. So I can see that Ramin, that O to B is small b. Small b is equals to 1/3 of OD. तो जब 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3B is equals to OD. सो इसका मतलब ये है मुईद के OD जो है वो टोटल मेरा बेटा वो 3B के बराबर है. ठीक है बेटा. तो ये ऊपर B लिखा है तो मैं यहाँ पे 2B लिख सकता हूँ. अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? Then the examiner is saying, that find the vector AB. So what is the vector AB? Beta A to B vector is A to O plus O to B. So A to O is what? A to O is negative A and O to B is plus B. So negative A plus B is the answer for part 1 and we are done with this question. Then the examiner is saying find CD vector. Okay, so C to D vector क्या है बेटा? C to D vector जो है मुईद C to A plus A to O plus O to B plus B to D. आप एक ही दफा O D भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. C to A is negative A to O is also negative A, O to B is plus B, B to D is plus 2B. तो माइनस A सर is minus 2A. जी बेटा. एंड प्लस 3B. सर हम लोगों ने ए बी वेक्टर अभी फाइंड आउट किया तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते. कर अब सकते ए हैं बी सी टू डायरेक्ट ए लिखनी. सी हम कर सकते हैं C to A to B और B to D कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. ओके. रिजल्ट सेम आएगा. ठीक है. यू विल गेट द सेम रिजल्ट इफ योर वे इज करेक्ट. ओके. अब ऑब्वियस सी बात है कि आई यस वांट टू फाइंड आउट C to D. आई कैन टेक दिस वे and the second choice is this way. Whatever is easy for you. Okay. Okay. यस सर. Okay. In the next part B can be tricky, but it is not that much tricky if you understand the concept. They say that E is the point on CD where C to E is 1 and E to D is 1:2. Okay. So it means that this is CD line. Yamna, can you please pay attention here? They say that C to E is one portion and E to D is double. So it means that E is somewhere here. Do you agree with me or not? यस सर. Because total C to D के there are 3 pieces. ठीक है. So E to D is double now. क्योंकि मैं यहाँ पे डबल लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे कि 1:2 का मतलब है 1 + 2 is 3. टोटल कितने पीसेस हैं? 3 पीसेस हैं. तो C to E 1 piece है. तो I can say that this is 1/3 and this is 2/3. Yes or no, Ramin? जी सर. तो बेटा I can say that C to E it is 1/3 of CD and CD is what? -2A plus 3B. हमने अभी फाइंड किया है. And E to D vector it is equals to 2/3 of -2A plus 3B. We just got it. ठीक है. Find express B to E vector. Okay, so B to E vector क्या होगा? So for example, I'm going to connect this point with that here. I want to find out that what is BE vector. So you can see one thing, that this is, for example, BE. So I want to find out what is BE. So BE would be BD plus DE. So BE कितना होगा बेटा? BE vector would be तैयबा B से E vector होगा B to D plus D to E. साइम बेटा B to D तो बहुत आसान है, 2B आ गया. लेकिन DE जो है वो हम लोग अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहे हैं क्योंकि वो वेक्टर ऐसे हमने फाइंड किया था CD. एग्री? तो हम यहाँ पे माइनस का साइन सर पहले ही लगा देंगे. जी बेटा. 2B कहाँ से आ गया? बेटा ये आपने क्लास लेट ज्वाइन की है ना? सर कनेक्शन इश्यूज हो रहे हैं मेरे. जी. तो ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दैट OB इज 1/3 ऑफ OD. समझ आई? ये OB क्वेश्चन में गिवन था 1/3. कि OB इज 1/3 ऑफ OD. तो OB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी B, तो मैंने इसकी जगह पे B लिखा है. तो फिर ये 3 यहाँ पे लाया तो ये टोटल 3B आ गया मेरे पास OD. तो जब OD 3B है तो ये B हुआ, तो क्या ये 2B हुआ? अच्छा बिल्कुल.
ओके, हाँ DE इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो DE की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये वैल्यू होगी, लेकिन माइनस का साइन हमने पहले ही लगा दिया है, तो -2/3 ऑफ -2A प्लस 3B। तो ये माइनस का साइन जो है डायरेक्शन की वजह से लगाया है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट -2/3 अंदर मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4 A/3 प्लस माइनस इज माइनस, 2 3 जार 6 B/3। ओके, बी को एक साथ कर लें, तो -2B -6B/3 प्लस 4/3A। आई गॉट द आइडिया मोहित कि दैट ये लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल होगा हमारा, ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। प्लस 4/3A, 1 3 जार 3, 2 3 जार 6B, तो -6B एंड -6B, तो -6B, तो -6B आता है -12B, कितना आता है बेटा, -12B/3 प्लस 4/3A। तो 12 और 3 जो है यू कैन कैंसिल देम, तो ये आ जाएगा बेटा -4B प्लस 4/3A। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर 2 मार्क्स। So I hope you got the idea. This is just simple plus minus of the question. बाकी और वेक्टर्स में कुछ भी नहीं है। सर Yes. सर ये मुझे इसकी समझ नहीं आई कि जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है ये बेटा -2। आपको आपको ये आइडिया है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट C/E इट इज इक्वल टू ED, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, अब आपको समझ आया। जी सर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि CE1 है और ED डबल है, तो मैंने यहाँ पे 3 नुक्ते लगा दिए, मैंने कहा कि CE1 हुआ और ED डबल हुआ, तो तभी मैंने E यहाँ पे लगाया है। ये समझ आया, जी ये समझ आया। मुझे आइडिया हो गया कि ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये भी क्लियर हुआ। जी आपने CD पिछले पार्ट में फाइंड किया है ना, जी फाइंड आउट किया है तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि CE कितना है, CE इज 1/3 ऑफ दिस थिंग, अंडरस्टूड। और ED कितना है, ED इज 2/3 ऑफ दिस थिंग, अंडरस्टूड। यस। एग्जामिनर मुझसे मांग रहा था BE वेक्टर, तो मैंने ऊपर डॉटेड लाइन में लगाया, तो B से E तक जाने के लिए आई नीड BD प्लस DE, अंडरस्टूड। तो जी BD की वैल्यू 2B थी, वो मैंने एज इट इज लिखी, लेकिन DE की जगह पे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर था वो कुछ इस तरह आ रहा था, अंडरस्टूड, और मैं कुछ ऐसे जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने साइन को माइनस किया, अंडरस्टूड। यस। तो वो क्योंकि वो डायरेक्शन ऐसी आ रही थी, मैंने साइन को चेंज किया, तो मैंने इसीलिए -2/3 से मल्टीप्लाई किया, अंडरस्टूड। देखो ED के वेक्टर मेरे पास ये है ना मोहित, जी मैंने इसके साथ माइनस लगाया है, प्लस नहीं, क्योंकि आई एम गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन, अंडरस्टूड। और फिर सर इस मैंने फिर और फिर क्या इस स्टेप के बाद ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन हुई है, अंडरस्टूड। सिंप्लीफिकेशन तो समझ आ गई सर लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाला। भाई क्या देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या किया, देखो -2 इंटू -2 प्लस 4 आता है, अंडरस्टूड। नहीं नहीं वो भी ठीक है सर लेकिन मैं कह रहा था कि हमने पुट क्यों किया है -2A + 3B। ये इसलिए पुट किया है क्योंकि देखो आप अंडरस्टैंड करो, उन्होंने कहा है ना E इज अ पॉइंट ऑन CD, E एक पॉइंट है, CD लाइन के ऊपर ही है, अंडरस्टूड। जी तो उन्होंने कहा है कि CD where C/E is 1:2, तो C/E is 1 and E/D is 2, तो ये 1 है, तो ये 2 पीसेस हैं, तो ये 1/3 हुआ, ये 2/3 हुआ, अंडरस्टूड। जी तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें और भी अच्छी समझ आएगी फिर, ठीक है। अच्छा, what they say that what type of quadrilateral ABEC is, okay, so AB E and C and A, what type of a special quadrilateral this is। अब AB और ट्रेपीजियम जी, rhombus में तो ट्रेपीजियम है शायद। अभी आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है, ये अभी हम मैंने लोग यहाँ पे साइन इसको नहीं बनाएंगे, किया। अभी हम बनाएंगे बेटा, 1 मिनट सब्र करें, इतना जल्दी आप लोग डिसाइड ना करें। A to B, B to E, E to C एंड C to A। ओके, अब जरा गौर करें कि इनकी मैं वैल्यूज लिखता हूँ। मेरा बेटा AC जो है वो स्मॉल a के बराबर है, अंडरस्टूड। ओके, AB जो है वो मेरे पास -A + B है, AB इज -A + B। ओके, यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ मोहित, यहाँ पे मैं E लिख देता हूँ, ठीक है।
सीई कितना है? सीई आपके पास ये है, सीई नजर आ रहा है आपको मोहित? ये आपके पास सीई है, हमने फाइंड किया हुआ है, वन जी थर्ड जी। है। ये क्या है? वन थर्ड है। तो मैं वन वन। थर्ड को जरा वन थर्ड को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/3 इंटू -2 हो जाएगा -2/3a प्लस 3b/3। ओके ओके, बीई हमारे पास अभी आया है, और बीई हमारे पास ये आया है अभी। लास्ट आंसर हमारा बीई ही था मोहित, वो था -4b प्लस 4/3a। अच्छा जी, अब आप ये देखें बेटा, यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि दैट ए सी इज नॉट पैरेलल टू बीई। ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि मोहित यहाँ पे ए सी की जगह पे सिर्फ ए है, और यहाँ पे तो -4b और 4/3 ए भी लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? जी लेकिन ए बी को देखो जरा, ए बी दोनों के पास ए बी है। अंडरस्टूड और नॉट? इन दोनों साइड्स के पास ए और बी मौजूद है। अंडरस्टूड? जी यहाँ पे भी ए का साइन जो है वो माइनस है, यहाँ पे भी ए का साइन माइनस है, यहाँ पे भी बी का साइन प्लस है, यहाँ पे भी बी का साइन प्लस है। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो इसमें हो गया वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। इसका मतलब है ये लेंथ आपस में पैरेलल हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू सीई बिकॉज साइन सेम है, सो इट्स अ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है। वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन जो होती है वो ट्रेपीजियम होती है। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Proceeding to the next जी सर। question. Proceeding to the next question. Please pay attention everybody. Question की समझ आएगी तो अगला question आपको समझ आ जाएगा. Okay. In the diagram, x is a point on AB where AX is 1/4 of AB. Okay. जरा आप देख लो जरा यहाँ पे पहले मोहित कि AX जो है वो 1/4 है AB का। क्या है? 1/4 है ए बी का। तो मेरा बेटा वहां पे AX की वैल्यू क्यों लिखी है ना? सर एक्स और बी की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। बेटा आप जरा प्लीज जरा अंडरस्टैंड तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो रेशो आपने सही निकाला। अब देखें यहाँ पे, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ए एक्स इज इक्वल टू 2 क्यू। नजर आ रहा है सामने डायग्राम में? जी तो बेटा ये 4 को इधर लाओगे तो क्या ये आ जाएगा 4q इज इक्वल टू ए बी? आ जाएगा कि नहीं? जी आ जाएगा। तो बेटा ए टू बी टोटल 4q है, तो क्या ये 3q होगा? जी हाँ सही है। अस्सलाम चले, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, y is the point on AC, y is the point on AC। ओके, y एक पॉइंट है AC के ऊपर, AC ये लाइन है, इसके ऊपर y एक पॉइंट है। अच्छा, AY is 1/3 ऑफ AC। क्वेश्चन में गिवन है, सामने नजर आ रहा है कि AY इज इक्वल टू P, तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। तो 3 यहाँ पे जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 3P इज इक्वल टू AC हो जाएगा मोहित? कह सकता हूँ बेटा कि नहीं? जी कह सकते हैं। तो 3P इज इक्वल टू AC हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये P है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2P, क्योंकि टोटल 3P है। अंडरस्टूड? अच्छा, सर फिर ये वो कहता है ये पूरे ए टू सी लाइन फाइंड आउट किया है। जी, ये 3P जो है ये हमने ए टू सी का ही फाइंड आउट किया है ना पूरा, मतलब ये हाँ जी ए। A to C, हाँ जी A to C 3P है, तो मतलब AY जो है वो P है, तो बाकी 2P होगा ना, क्योंकि टोटल 3 है। जी जी देन दे से दैट एक्सप्रेस ए एक्स वाई। मोहित x से y तक का रास्ता बताओ, x से गाड़ी स्टार्ट करो, y तक जाओ। x से गाड़ी स्टार्ट करो, y तक जाओ। टेल मी एक्स द से वे। वाई, एक्स एक्स टू ए, एक्स गुड। और फिर ए टू वाई, A to Y, वेरी गुड। x to A क्या होगा मोहित? माइनस क्यू गुड जॉब। और AY प्लस क्यू प्लस पी। प्लस P, गुड जॉब। -Q प्लस P, वेरी गुड, 1 मार्क तो हो गया। अब एग्जामिनर कहता है BC निकालो, ठीक है? B to C वेक्टर बताओ बेटा, B to C क्या कैसे जाएंगे? B to C, B to C वेक्टर प्लीज। बी टू एक्स वेरी गुड, B to X, और एक्स टू वाई, X to Y, वेरी गुड, जबरदस्त, गुड जॉब। वाई वाई टू सी, Y to सी। C, XY हमने निकाला हुआ सर है। x to a भी जा सकते हैं। वो जा सकते हैं, लंबा पड़ता था ना, उसने उसके पास XY था तो वो चला गया सर डायरेक्टली, ठीक है?
जी सर ये एक्स टू वाई डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते? डायरेक्ट जा सकते हैं, एक्स वाई होता तो जाते ना। पहले पार्ट में तो एक्स टू वाई था ही नहीं ना। है सर, ये किधर है एक्स टू एक्स टू? वाई ये लाइन जो बनी हुई है एक्स और वाई तो के उसके दरमियान। ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ बेटा, जब कुछ लिखा नहीं है तो मतलब अननोन है। अच्छा ओके, सो मुहीद बताएं जी बेटा, बी एक्स क्या है? बी एक्स है -3q। -3q। एक्स वाई क्या है? इसका तो नहीं पता सर। तो पता है ना, पार्ट वन में आपने फाइंड किया है ना, पार्ट वन का आंसर लिखो ना, एक्स वाई लिखा हुआ है ना। क्या ये वो है, क्या है? बेटा पार्ट वन का आंसर आपने भी तो फाइंड किया है, ये अच्छा अच्छा, -q + p। -q + p। एक्स वाई है, प्लस वाई सी सर। क्या है? वाई सी इज 2p। 2p। तो 3q - q इज -4q एंड p + 2p इज 3p। तो ये हो गया बेटा -4q + 3p। अब मेरी बात सुने साइम, अब हम लोग जैसे जैसे फाइंड करते जाते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाएं, ठीक है। एक्स वाई हमने फाइंड किया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -q + p। और हमने सी बी भी फाइंड किया है, बी सी भी फाइंड किया है। और बी सी की एरो हमें इस साइड पे डालना है, क्योंकि बी सी फाइंड किया है तो वो आया है -4q + 3p। अंडरस्टूड? सर मगर इधर माइनस क्यू क्यू किया है। किधर -q? ये मेरा बेटा पार्ट वन आपको, में। आप एक चीज पे समझ नहीं रहे हैं। हमने पहले पार्ट में एक्स वाई फाइंड किया था और एक्स वाई का आंसर ये आया हुआ है। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर, एक्स ए जो है एक्स ए, ये माइनस क्यू क्यू है। बेटा आप अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहे हैं, देखो क्यू तो नीचे आ रहा है ना, ये ए ओ एक्स है। अच्छा, ठीक है अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ। ओके, चलें जी। ओके, नेक्स्ट इज वदान, कैन यू हियर मी? यस सर। चलें जी, वदान। यस सर। अब वो कहता है एक्स जेड, जेड के लिए इन्होंने थर्ड, ये पहले दो पार्ट हमने इसलिए किए क्यों, ताकि हम क्वेश्चन में ज्यादा लांझा ना बने। तो इसीलिए वो थर्ड लाइन ऊपर लिखी है, जेड इज द पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड वेयर सी टू जेड इज डबल ऑफ बी सी। सी टू जेड क्या होगा? डबल ऑफ बी सी। हाँ जी, तो सी टू जेड जो है वो डबल ऑफ बी सी होगा। तो डबल ऑफ बी सी निकालने के लिए हमें -4q + 3p के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्री और नॉट? यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा -8q + 6p। अंडरस्टूड? ओके। जी एक्स जेड, अच्छा जी, एक्स टू जेड वेक्टर निकालना है वदान। मुझे बताएं कि एक्स से गाड़ी स्टार्ट करनी है, जेड तक जाना है, क्या रास्ता लेना चाहिए, शॉर्टकट बताना। सर, मैं क्लास में थोड़ा लेट आया हूँ, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट से नहीं पढ़ा कोई तो बात नहीं, मुझे। आप मुझे एक्स टू जेड रास्ता आप एक्स से गाड़ी स्टार्ट करो और जेड तक आओ, रास्ता बताओ। सर एक्स टू जेड अगर हम करते हैं तो सर ये पहले लेफ्ट पे जाएगा ना? नहीं, आप मुझे लेफ्ट को छोड़ें, आप यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करें और यहाँ तक आ जाएं, मुझे रास्ता बताएं। सर नीचे की तरफ ही आएगा हिंट ना? हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ, एक्स टू बी। अब आगे आगे तुम करो। एक्स टू अच्छा, जेड इज एक्स टू बी, एक्स टू बी एंड बी टू जेड, एक्स टू बी, बी टू सी एंड सी टू जेड। बी टू सी एंड सी टू जेड। गुड जॉब। अच्छा ये बताओ, एक्स टू बी क्या आएगा? एक्स टू बी तो सर ये तो नीचे है तो वाई माइनस होगा ना? नहीं है, एक्स टू बी क्या लिखा हुआ है, उसके आगे लेटर लिखा हुआ है, आंसर बताओ। 3Q, ये वाला हाँ सर। जी, यस 3q। ओके, बी टू सी क्या है? -4Q + 3P। -4q + 3p। ओके, सी टू जेड क्या है? -8Q + 6P। -8q + 6p। 6P। ओके, अब इसको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है तो हमें एक्स जेड मिल जाएगा। एक्स जेड इज इक्वल टू 3q - 4q इज -q +3p। अच्छा, +3p इसके साथ लिखते हैं ताकि ये अगले स्टेप में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें। ओके, -q - 8q + 3p + 6p। तो मेरा बेटा ये आ रहा है -9q + 9p। आ रहा है कि नहीं? तो एक्स जेड हो गया मेरे पास वदान -9q + 9p। अंडरस्टूड? 2 मार्क्स के लिए। अंडरस्टूड रामीन? जी सर। कहता है हैंड्स फाइंड एक्स वाई रेशो वाई जेड। ओके, वेट अ मिनट। एक्स वाई हमने फाइंड किया है क्वेश्चन में, एक्स वाई इज -q + p। एग्री और नॉट?
yes or no? यस सर। Yes. Okay, we have x y vector. Now we need to find out what is y z. So y z के लिए हमें निकालना पड़ेगा y to z vector. तो y to z vector क्या है हमारे पास? So तैयबा बेटा, can you hear me? बेटा y से गाड़ी स्टार्ट करो, z तक जाओ। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज एंडिंग, ये रास्ता लेना पड़ेगा। बताएं जी क्या लिखूं तैयबा? जी सर। जी बताएं। y to z, और C to C। y to c and c to z। गुड जॉब। y to c कितना है बेटा? 2P वेरी गुड, 2p। एंड c to z कितना है? -8Q + 6P। -8q + 6p। ओके, सो सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2p + 6p 8p -8q। ओके, तो तैयबा हमारे पास एक्स वाई जो है वो इसके बराबर है, तो वाई जेड जो है बेटा वो -8q + 6p के बराबर है। आया कि नहीं? आया कि जी नहीं बेटा? जी सर। ओके, एग्जामिनर मांग रहा है आपसे रेशो, कि इनका रेशो क्या है हमारे पास, ठीक है? वैसे कि 8p आना चाहिए था, तो हमने ये इसमें क्या गलती किया? ओ, यहाँ पे मैंने लिखा गलत है, Sir, ये मैंने लिखा गलत है, 8q + 8p। अब ठीक हो गया। यमुना yes, sir. बेटा यहाँ पे 1 है, all of you can see this is 1 and this is 8 and this is also 1 and this is 8, isn't it 1:8? Yes, sir. तो 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। जी समझ आया बेटा सबको? सर ये कैसे किया लास्ट पार्ट? बेटा आपने हमें एक्स वाई को फाइंड किया हुआ था पहले। उमर, एक्स वाई पहले फाइंड है, पार्ट ए का पार्ट 1, ठीक है? सर वाई जेड नहीं था हमारे पास उमर, तो वाई जेड हमने पहले निकाला है। तो वाई जेड के लिए हमने वाई टू सी गए और सी टू जेड गए, तो वाई जेड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई उमर, ठीक है? नहीं सर, निकालने के बाद फिर क्या करना है तो लास्ट? निकालने के बाद हम लोगों ने एक्स वाई के नीचे एक्स वाई लिखा है, रेशो की जगह पे रेशो लिखा है, और वाई जेड की जगह पे वाई जेड लिखा है। यहाँ पे देखा तो 1q लिखा है, यहाँ पे 8q लिखा हुआ है, यहाँ पे 1p लिखा है, यहाँ पे 8p लिखा है। इसका मतलब है ये 1:8 है। जी अंडरस्टूड। जी साइम आप कुछ कह रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि ये -4Q और +3P कहाँ से मिला? नहीं, आपने कैसे निकाला? B2C वाले की बात कर रहे हो? जी जी, ये तो मेरा 3Q बेटा, और 2P नीचे आ रहा है ना, तो फिर -4Q और +3PQ हुआ है। बेटा आप एक चीज को जरा समझ डालें कि B2C वाज अननोन इन द क्वेश्चन, ये अननोन था, ठीक है? तो B2C जाने के लिए मुझे चाहिए था, मैंने रास्ता लिया था BX XY और YC। एनी प्रॉब्लम? X Y और देखे जी, B2X भी मेरे पास था, वो हो गया था मेरा -3Q, ठीक है? X to Y हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके थे। Y to C हमारे पास ऑलरेडी सर, अवेलेबल था क्वेश्चन से ही। जी, मगर ये -3QQ है, तो बेटा आप भी प्लस देखो थ्री ना क्यू क्यू यार, नहीं मैं है। B to X जा रहा हूँ, वो X to B आ रहा है, X to B ऐसे जा रहा है, मैं जब B to X जाऊंगा तो माइनस नहीं करूंगा। X to B नीचे आ रहा है तो वो तो 3Q है ना। तो बेटा मैं तो B to X जा रहा था ना, मैंने तो यहाँ से इधर जाना शुरू किया ना, तो वी आर आई वाज गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन। अच्छा, जब आप अगेंस्ट द डायरेक्शन जाते हो तो आपने साइन चेंज करना होता है। ओ ठीक है ठीक है, ऊपर जा रहे हैं फिर X to Y। X to Y सेम था तो इसीलिए उसका साइन चेंज नहीं हुआ। देखो -Q + P लिखा हुआ है। X to C भी ठीक, रास्ता भी सेम है, मैं जा भी ऐसे रहा हूँ, तो तब भी उसकी जगह पे 2p लिखा हुआ है, उसका साइन चेंज नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी समझ आ गया। थैंक यू सर। Proceeding to the next question, thank you. Okay, this is question number 7. It says that the diagram shows point O and R and the vectors A and B. Okay, we can see that. Given that O to P is double of A, so double of A कुछ ऐसा हो जाएगा, एग्री और नॉट? तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉइंट P, क्योंकि ये भी डबल हो गया A का, क्योंकि 2A है ना। Mark and label the position of point P on the grid. Done. Given that O to Q is 2B - A, mark and label the position of Q on the grid. Okay. So बेटा O to B यहाँ पे आ रहा है, ये +B चल रहा है,
मुझे 2b करना है, तो मैं पहले जरा 2b तो कर लूं जरा इसको। तो ये हो गया जी डबल। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो वदान, सर। एनी नो सर। प्रॉब्लम? ओके, फिर वो कहता है माइनस ए जाओ। माइनस ए का मतलब है कि अगेंस्ट द डायरेक्शन जाना है, तो माइनस ए का मतलब है कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। एग्री और नॉट? यस और नो? और मैं यहाँ पे लिखूंगा सर ये माइनस ए। माइनस ही नहीं समझ आया। मेरा बेटा देखो, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ओ टू ये यहाँ तक ये वाला प्लस ए है। एग्री और नॉट? जी सर। माइनस ए का मतलब है ना कि ये ऊपर जाएगा। यस सर, समझ आ गया। अंडरस्टूड? इसका मतलब है कि ये आर यस। ओ क्यू पॉइंट जो है, ये क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा। दिस इज क्यू पॉइंट। 1 मार्क। एक्सप्रेस ओ आर, आपने ओ टू आर एक्सप्रेस करना है। वदान, ओ से आर को मैं कनेक्ट करता हूँ। एग्री? यस सर। वदान, ओ से आर तक जाने के लिए आई नीड टू गो दिस मच बैक। एग्री? एंड दिस मच अप। एग्री और नॉट? यस और नो? यस। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब O टू R वुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें बेटा जरा, यहाँ पे we got the idea here that two boxes it means B। तो यहाँ पे two boxes पीछे जा रहे हैं आप लोग, तो ये माइनस बी है, तो माइनस 1.5 B होगा। एग्री और नॉट? यस और नो? यस जी और सर। नो? यस सर। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, रमीन, ये हो जाएगा -1.5 B। अब रामीन ये कितना होगा? आइडिया डेवलप करके बताना। प्लस ए और माइनस सर ए। यप। सर ये 1.5 मुझे बॉक्स की नहीं समझ आई जो आपने 1.5 की अच्छा है। चलो 1.5 अगर नहीं भी लेते ना, एक चीज अंडरस्टैंड करें। आपको ओ टू एक्स जाना है ना रामी, क्या नाम है, यमुना? जी सर। आपको ओ टू एक्स जाना है ना, ओ टू, सॉरी ओ टू आर कितना जाना है? ओ टू आर। O to R। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ बी और ए अवेलेबल है, मैं बी और ए के जरिए ही जा सकता हूँ। अंडरस्टूड और नॉट? तो यस। मैंने ओ टू आर को कनेक्ट किया। एग्री? यस। अब ओ टू आर को कनेक्ट करने के बाद मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो ये मेरे पास बी बी आएगा। एग्री और नॉट? और यहाँ यस। से यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये ए के बराबर है। एग्री और नॉट? यस। अब यहाँ पे मेरा बेटा यमुना ये एरो ऐसे लगा दिया, उस साइड पे 2 बी बी थे, तो इस साइड पे -2 B हुए कि नहीं? यस सर होगा। अब ये लाइन में ऊपर जाने के लिए मुझे ऊपर जा रहा हूँ, तो ये -A होगा कि नहीं? होगा। तो इसका मतलब है कि O टू R वेक्टर जो है वो है -2B -A। यस जी बेटा। जी बेटा क्या कह रही है? जी रामीन। जब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये माइनस में है ना, लेकिन हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो ये माइनस कैसे, तो प्लस होगा ना, नीचे थोड़ी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मेरा बेटा आपको जरा ये अंडरस्टैंड करना है कि आप ऊपर नीचे को छोड़ें और आप ये देखें जरा, ए आपका इधर आ रहा था तभी पॉजिटिव होता है। एग्री और नॉट? नहीं सर, जब नीचे जाता है तो नेगेटिव होता है, ऊपर बेटा जाता है आप तो उसको पॉजिटिव। छोड़ दें, आप वेक्टर के उसको भूल जाएं बस, अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए भूल जाएं उसको, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जरा प्लीज पे अटेंशन। आपको यहाँ पे जरा बोर्ड ये देखें, मैं मिटाता हूँ सारा, मैंने सारा मिटा दिया, सब गौर से देखें। एग्जामिनर कहता है गिवन दैट O टू P इज डबल ऑफ A। ओके, तो मेरे पास A ऑलरेडी अवेलेबल है, तो O टू P जो है वो डबल है A का। तो रामीन ये A है, तो मैं थोड़ा डबल कर देता हूँ इसको ताकि यहाँ पे P आ जाए। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, अभी नॉन स्टॉप माइक ऑन रहना चाहिए तुम्हारा। O टू Q इज 2B और -A। ओके, तो 2B तो पहले करूं जरा मैं, O टू Q, तो 2B ये हो गया भाई 2B, और -A का मतलब है कि अब मैं ऊपर चला जाऊंगा। ये समझ आया कि नहीं? सर आ गया। आ गया समझ, क्योंकि A नीचे जा रहा था ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ये -A हुआ है। तो पर अब सर आप पहले तो इस तरह नहीं करते थे ना, पहले तो मेरा बेटा जब। देखे, मेरी बात सुने ना, आप उस टाइम वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले एक्स वाई करते थे, जब एक्स पॉजिटिव होता था गो राइट गो लेफ्ट करते थे हम लोग तब वहां पे। एग्री और नॉट? जी सर। उसके साथ इस तरह के क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं चल रही है, हम ग्रिड पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई 1 2 3 अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर।
अब यहाँ पे देखिए वो कहता है कि एक्सप्रेस ओ आर। अब ओ आर को एक्सप्रेस करने के लिए पहले मैं तो इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब साइन ओ टू आर मुझे जाना है, तो ओ टू आर के लिए मुझे सिर्फ बी और एक ए ही अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो मैंने उसी के सहारे पे जाना है। एग्री? जी बिल्कुल। अब ओ से आर तक जाने के लिए मुझे पता है, अभी देखो मैं रास्ता थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पिछली दफा जो लिया था वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो मैंने ये रास्ता ले लिया है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके। अब ब्राह्मीन ए नीचे जा रहा है तो मैं नहीं तो ऊपर आ रहा हूँ, तो क्या माइनस ए होगा? जी सर होगा। और ये यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और बी तो उस साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे होगा, हो जाएगा माइनस टू बी। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर समझ आ गई। शुक्र है। सर। तो ओ आर ए माइनस ए माइनस टू बी। जी बेटा, जी साइम आप बोलो। सर ये दूसरी तरीके से भी कर सकता है ना कि -2 भी एक ही पहले कर बात, लें और फिर एक ही -a बात है कर बेटा, लें। एक ही बात है। 1 + 2 करो या 2 + 1 करें, आंसर इज 3। ठीक है, ओके। चलें अगला क्वेश्चन देखें, काफी समझ आएगी इसमें भी। अभी कहता है ओपी आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम में वी नो दैट, हमने शेप्स में पढ़ा है ऑलरेडी। पैरेललोग्राम एक ऐसा स्ट्रेटेड रेक्टेंगल होता है जिसमें टू पेयर्स ऑफ लाइंस होती हैं पैरेलल, तो फ्रंट आमने सामने पैरेलल होंगे। सो वदान कैन यू हियर मी दैट दिस लेंथ ये भी पी के बराबर होगा? एग्री और नॉट? यस सर। अब पी एस और एस आर के लिए जरा आराम से जरा गौर करना कि पी एस कहता है 1 है और एस आर कहता है 3 है। तो पी एस बेटा 1 है तो एस आर 3 है, तो ये 3/4 हुआ और ये 1/4 हुआ। एग्री और नॉट? यस सर। तो ये 1/4 ऑफ क्यू हुआ और ये हुआ बेटा 3/4 ऑफ, ये हुआ, एक मिनट ये इसको मैं मिटा दूं, 3/4 है ये हुआ 3/4 ऑफ क्यू। अंडरस्टूड? सर बाय 4 किधर से आ गया? बेटा टोटल यार, आपको ये समझ नहीं आ रही साइम? बेटा 1 + 3 सॉरी कितना सॉरी होता है? सॉरी। इसीलिए कहता हूँ गौर करो, बीच में क्वेश्चन नहीं पूछो। ओके, एक्सप्रेस पी क्यू। साइम पी से क्यू जाओ, बताओ शाबा रास्ता। P to R, R to Q। क्यों मुश्किल रास्ता लेते हो? सीधा सीधा जाओ ना, पी टू ओ और ओ टू क्यू। जी वो भी कर सकते। सिंपल रास्ता लिया करो, पी टू ओ प्लस ओ क्यू। O to Q। एग्री? अग्री। तो पी ओ क्या है? व्हाट इज पी P ओ? P plus Q। बेटा पी ओ क्या है? मैं आपसे पी ओ पूछ रहा हूँ। P O P पी टू ओ क्या है? P। -p। इट्स माइनस पी। आप पी से ओ पे जा हैं? रहे हैं, ओ से पी प्लस पी है, ओ अच्छा ठीक है ठीक। एंड ओ टू क्यू इज प्लस क्यू। तो ये हो गया आंसर -p प्लस क्यू। अब अच्छा। साइम आपने ये फाइंड किया है ना पी क्यू, जी अब जी इसको याद रखना है और इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देनी है ताकि कल को जरूरत पड़ सकती है इसकी। समझ आई? ठीक है सर। इसकी जरूरत पड़ सकती है अगले अगले किसी पार्ट में, तो यहाँ पे लिख देना -p प्लस क्यू, और पी क्यू फाइंड किया तो एरो ऐसे लगाना, क्यू एस। ठीक रामीन, है। रामीन अटेंशन, क्यू एस, रामीन क्यू टू एस, सर Q2O प्लस O2P प्लस P2S। क्यू क्यू टू ओ। ठीक है, लंबा रास्ता लिया है लेकिन ठीक है। क्यू टू ओ प्लस ओ टू पी प्लस पी टू एस। चलें जी, क्यू ओ क्या है बेटा? सर -Q वेरी गुड। ओ पी क्या है? प्लस P और फिर 1/4 ऑफ P। नहीं वन हाँ। पी, हाँ 1/4 ऑफ क्यू हाँ प्लस वन बाय वन फोर ऑफ ओवर Q। फोर ऑफ क्यू। ठीक है, अच्छा अब इनको जरा सर सिंप्लीफाई करना है क्योंकि दो क्यू हैं। जी बेटा यमुना, -q सर प्लस हम वन लोग ओवर फोर क्यू। क्यू पी और पी एस ले सकते हैं ना इसी हाँ पार्ट जी के ले लिए? सकते हैं। आप ले सकते हैं कि आपने आपने क्यू एस निकालना है ना, तो आप क्यू पी प्लस पी एस ले लो, शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा, बटरफ्लाई मेथड, 1 4 * 4, -q × 4 इज -4q, +1 × 1 इज +1q प्लस p। तो 5 + 1 इज 4 + 1 इज 5/4q प्लस p। रामीन ये आ सर गया ये है? p कहाँ से आ गया? सर वो -4Q था, आपने +4Q हाय किया हुआ है तो ये हाय, -3Q हो जाएगा ना। एक मिनट यार। जी उमर,
आपको यहाँ तक समझ आई हुई है जहाँ तक मैंने मिटा दिया? नहीं सर, ये डायग्राम में वो कह रहा हूँ, ये Q2R में जो है P, Q2R में क्या हुआ? ये जो P लिखा हुआ है बीच में, हाँ ये कहाँ से आया? बेटा, आपको पैरेललोग्राम का नहीं पता कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये P है तो वो भी P होगा ना। अच्छा, ऐसे किया। क्या बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो? अब यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड क्यू के नीचे 1 है तो 4 1, तो -4 इंटू -q इज -4q, प्लस 1 इंटू 1 इज 1q, प्लस p बाहर रहेगा, तो -4 + 1 इज 3q/4 प्लस p/4 प्लस p। सो दैट इज द आंसर। तो ये आंसर आ गया है उमर। अब इस आंसर को ऊपर लिखना जरूरी है। तो QS आपने सर फाइंड ये किया है। -3 नहीं होगा? यस, -3 होगा। वेरी गुड। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे इस आंसर को ऊपर लिख देंगे। QS फाइंड किया है रामीन, तो QS का एरो ऐसे जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख दें -3q प्लस p। अंडरस्टूड? अब एग्जामिनर क्या यस। कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि सर t 4 क्यों इज नहीं अ। लिखा उसके नीचे? जी बेटा। 4 क्यों नहीं लिखा? हाँ, 4 मिस हो गया। गुड जॉब, थैंक यू। T is a point on QS. अच्छा, T is a point on QS extended such that Q to T is 4/3. Okay. मेरा बेटा वो कह रहा है, रामीन कह रहा है कि Q T is a point on QS. QS पे है, तो QS पे पॉइंट है तो वो एक्सटेंड करके आया है, तो मतलब वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है। Such that Q to T is 4/3 of QS. एक्सप्रेस PT। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ वदान, कि ये पॉइंट जो है वो मेरा T पॉइंट है। एग्री वदान? ये मैं कह देता हूँ कि ये लाइन मैंने कनेक्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? ओके। एग्जामिनर कहता है कि T इज अ पॉइंट ऑन QS सच दैट Q to T इट इज 4/3 ऑफ QS। तो हमारे पास QT जो है वो आ गया है। QS हमने फाइंड किया है। क्या नाम है आपका, उमर? तो हम लोग QS आपने फाइंड किया, तो आप QT निकाल सकते हैं। वो है 4/3 ऑफ QS। QS आपका पिछला आंसर है, -3/4 ऑफ Q प्लस P। तो 4/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3s आर -12 डिवाइडेड बाय 12Q प्लस 4/3P। तो उमर 12 और 12 कटेगा, तो ये आ जाएगा बेटा -Q प्लस 4/3P। अंडरस्टूड उमर? तो ये Q to T आ गया आपके पास। अब एग्जामिनर कहता है एक्सप्रेस PT। तो बेटा P to T क्या होगा? P से T तक जाने के लिए आई नीड PQ प्लस आई नीड PT। आई नीड PT नहीं, सॉरी, QT हमने भी फाइंड किया हुआ है। सो रामीन बेटा, P to Q इज हाउ मच? इट इज -P प्लस Q, हमने मेंशन किया हुआ है। एंड Q to T इज दिस थिंगी, हमने फाइंड किया क्वेश्चन से। सो -Q plus 4/3P. Ramin, I can cancel -Q and +Q. Agree? जी सर। So कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। P to T is equals to -P plus 4/3P। बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल कर ले, 1 3s are 3, -3P plus 4P, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आएगा 1/3P। तो ये आ गया बेटा 1/3P। तो ये आ गया हमारे पास PT 1/3P। कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द पॉइंट OP एंड T? ओके बेटा, OP एंड T they are collinears because it's P and it's 1/3P, so they are collinear points. They are collinear points. Understood everybody or not? बिल्कुल Please सर। प्लीज कोशिश करें, यस। दिस इज माय रिक्वेस्ट, कि आप लोग जो हैं इसको, इन क्वेश्चंस को एक आध दफा जरूर प्रैक्टिस करें। हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जो है टाइम लेता है, लेकिन देखिए हम लोगों ने अभी तक इस वर्कशीट में 8 क्वेश्चंस किए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है ऑलरेडी मौजूद है। तो आप लोगों के पास बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग इस वर्कशीट को प्रिंट कर लो। अगर आपके पास O लेवल्स का पेपर 1 है तो आप लोग इजीली कर सकते हो। जरा जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ आ जाए। उमर, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। सर ये लास्ट क्वेश्चन है बस। ये लास्ट क्वेश्चन है यस जी सर। हमारा।
अच्छा जी, OACB इज अ पैरेललोग्राम। तो उमर यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे भी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं। एग्री और नॉट? यस सर। कहता है P and Q are point on OC such that OP is equals to PQ and is equals to QC। इसका मतलब है ये तीनों पीस आपस में बराबर हैं। एग्री और नॉट? जी सर। अच्छा, कहता है फाइंड OP। तो OP तब फाइंड होगा जब हम OC निकालेंगे। तो OP को फाइंड करने के लिए थोड़ा वेट करते हैं, हम OC निकालते हैं पहले। बेटा O to C कितना है हमारे पास? O to C आएगा हमारे पास O to B प्लस B to C। रामीन O to B कितना है बेटा? प्लस B है। और B to C कितना है? A है। एग्री और नॉट? जी सर। तो OP कितना होगा? डिवाइड बाय 3 करके आएगा। तो OP इज B प्लस A डिवाइडेड बाय 3। तो दैट इज द आंसर, B प्लस A डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि उमर उन्होंने कहा है यहाँ पे कि ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इक्वल है। तो 3 पे डिवाइड कर दिया मैंने। BP क्या होगा बेटा? BP निकालने के लिए, B to P निकालने के लिए वदान, B से P जाने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड B to O प्लस O to P। तो सर B थोड़ा सा to O स्लो। कितना है? B to O कितना है? माइनस B। B to O इज माइनस B। एंड OP कितना है बेटा? पिछले पार्ट का आंसर है। OP इज B प्लस A बाई 3। अब इसको ओपन कर लें ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो माइनस B प्लस B बाई 3 प्लस A बाई 3। बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल हुआ। 1 3 ज़ा 3 फ्रैक्शंस हैं। माइनस 3B प्लस B प्लस A बाई 3। तो माइनस 2B by 3 plus A by 3. Show that triangles OAQ and सर ये पार्ट 2 CBQ फिर से are थोड़ा सा। congruent। तो पार्ट 2 में क्या समझाऊं आपको? वो कह रहा है एग्जामिनर कि BP निकालो। तो B से P तक जाने के लिए you need BO and OP। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? यस सर। तो B to O आपके पास था माइनस B, क्योंकि B ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे आए हैं, तो माइनस B। OP आपने अभी फाइंड किया है, ये लिखा हुआ है, बट जस्ट इन दोनों को ऐड किया है मैंने यहाँ पे बस। ओ सही है शो सर। दैट ट्राइंगल्स OAQ एंड CBQ आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल हैं, कहता है ये बताओ कि दोनों बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है? OAQ की बात हो रही है। OANQ। तो OANQ कुछ ये ट्राइंगल है, एक कहता है ट्राइंगल ये है, और दूसरा ट्राइंगल है CBQ। तो आई मीन CB and P, ये ट्राइंगल है। ठीक है रामीन? जी सर ठीक है। क्लियर हो गया? तो बेटा दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब आप इनको, इनकी तमाम की तमाम लेंथ्स बराबर हों। एग्री और नॉट? यस और नो? तो बेटा A to O इज स्मॉल a। देख लें बेटा यहाँ पे, A to O is small a, C to B is also small a। OP is what? 2/3 of CO। and what? PC is what? It is 2/3 again। तो जब two lengths are बराबर तो third one is automatically बराबर। एग्री? एग्री? So you can say that AO length, it is equals to BC। Okay, so Yamna, AO BC के बराबर है। It's a parallelogram। Agree or not? That is the reason ये बराबर है। Agree or not? यस सर। यमुना, OQ येलो ट्राइंगल का है। Agree or not? और PC जी ब्लू सर। ट्राइंगल का है। ये दोनों बराबर हैं। Agree? Both are 2/3 given in the question। Agree or not? Given यस in question। So third side automatically बराबर हुई, तो AQ would be equals to PB। ये PB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। सो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। वैसे ये सब पार्ट सिलेबस से आउट हो गया है। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज आउट फ्रॉम द सिलेबस नाउ। ये पुराना क्वेश्चन था। तो चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो सेम टाइम, एंड प्लीज do make sure try to attend most of the lessons, and if you joined late class, so you have to just watch the recording one more time। Okay, take care, thank you so much everybody। Allah ओके Hafiz। सर, अल्लाह हाफिज।